December, last month of the year. It's come out in the eye, but I hope one more lap finished in this race of life. Right? One more lap. Who knows? Who knows how many laps left? Right? Who knows how many laps left? For whom? What thinking? I don't know. कितनी laps बाकी है मेरी और? So therefore, इतना है कि I have gotten this new lap. I'm in the next lap. I do want to finish the job, this next lap. ना? और कितने laps बाकी है इस जीवन की सदा में? पता नहीं. कितनी बार और गोल घूमना है. एक हो गया और अभी जो आ रहा है next lap, might as well be my last lap. इसके बाद और दौड़ना हो तो दौड़ेंगे, लेकिन काम जो करना है जिसलिए भागे जा रहे हैं. That's the point. The reason for which I'm running, I don't even know why I'm running. Right? जिसलिए दौड़ रहे हैं वो काम पूर्ण हो जाएगा कितना आनंद है. फिर रेस चलेगी तब तक चलती रहे, रुके तो रुकी रहे, पुनः रुके उसके बाद. So as you step into the new year, I would encourage you to think. What do you want to put your attention on? Where do you want to put your energy on? And some mission. What is the purpose? The last thing should be, जो चल रहा है वैसे ही चलना. It cannot be very smart. It's okay. I don't have to think about it. I have to do the same thing. I have to go to work. I have to earn money. I have to buy groceries. I have to make sure the heater is working, all that. After another year gone. And who knows, we will be next year, 2017, ending. And if looking back, that I'm नहीं देख पाई कि so what happened in this next lap? What did I achieve? खाली दौड़ रहे हैं या सामने सड़क है ना? खाली गोल गोल घूम रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं या आगे भी चल रहे हैं? And we should be able to say that, we want to be able to say that, no, I think I have moved forward, that I've made progress. I haven't been just running around, but I'm actually moving, not just running. There's a difference, right? So within that assumed is that we know where we're going, where we want to go. जैसे आज सुबह में मेरी किसी से बातचीत हो रही थी, someone from Atlanta, and so he has a different way of looking at life, and so we were talking about it. उसमें से उस चर्चा में एक उदाहरण निकला, so I'll share with you. As if जैसे एक बाजार में गए हम लोग, right? And उस बाजार में सब मिलता है. And not Walmart, but दुनिया की कोई भी चीज, whatever you can imagine, it's there in the bazaar. और ऐसी हमारे पास इतनी पूंजी अगर भगवान ने दे रखी हो, as much money in my pocket that I can buy any one thing from that market. कितनी भी कीमती हो, हीरे जड़ों लदी हुई हो, कितनी भी कीमती हो, कितनी भी सस्ती हो, whatever, it doesn't matter. One thing from that market I can buy, right? So I have enough money that no matter what it is, no matter how expensive it is, that I will be able to buy that one thing. But I only have enough to buy one thing. Once I buy that, then I'm finished. I don't have any more money for anything. एक अगर बात मुझे चाहिए है तो. So as we enter the market and look for hundreds of thousands of things, हजारों चीज वस्तुएं हैं, and then I'm looking for something. I'm thinking, what is that one thing that I want? What is the one thing that I want? Because I can get anything from here. हजारों वस्तुएं हैं, कुछ भी ले सकता हूँ, but it doesn't matter how expensive it is. I can buy still because भगवान ने जेब में पॉकेट में इतने पैसे देकर रखे कि you will be able to buy. But I will only be able to buy one thing. As soon as I get it, my money is finished. What is it? What will you buy? Right? What is it that you will want to buy? I don't know. Right? Like different people might buy different things. कोई कुछ खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा. कोई बहुत समय लेगा देखने के लिए कि ये लूँ, फिर से वापस आएगा, फिर से कुछ जो भी. क्या भाव करने की जरूरत नहीं है, because you have enough. So you don't ask for a coupon, discount, anything. You have enough to buy one thing. And it doesn't matter how कितनी सस्ती मिलेगी, कि एक मिलने के बाद खत्म होने वाली पूंजी, right? So what is that one thing that you ask for? It's a rhetorical question. मतलब you don't have to answer it. Just think about it. एक वस्तु जो मिलेगी वो क्या प्राप्त करना चाहोगे? अपने मन में सोचे. और ऐसी ही वास्तविक में जिंदगी ऐसी है. यहाँ पर ये जो बाजार में हम लोग आए हैं,
We already have enough punji. ये जीवन जो हमारे भीतर अंदर जो चल रहा है, right? The life breath, the consciousness, the awareness. ये consciousness है जिसे कहते हैं हम चेतन. Oh, sorry, this is Madhu's phone. इस पर ध्यान की ट्यून लगेगी. She gets, I can tell you how many texts and messages and WhatsApp she gets. बीच में चलता रहेगा. So, no one texts me somehow. इसके पीछे पड़े होते हैं. जय श्री कृष्ण. So what will that one thing be? So when we were born, when we've been given this human birth, उसमें जो awareness भरा हुआ है, चेतना शक्ति है ना. I don't believe in Darwin's theory of evolution, कि शरीर evolution, but I do believe in evolution. I don't believe in Darwin's theory of biological, physical evolution, but I believe in spiritual evolution, the evolution of the spirit, evolution of the soul. जैसे सब और awareness ही है, चैतन्य ही चैतन्य है, चेतना शक्ति ही है. लेकिन वो चेतना जो प्रत्येक शरीर में तो कुछ अलग limited consciousness है. It can only do so much, it can only think so much. है ना, वही जो चूहे में तो अलग है, मछली में तो अलग है, पेड़ पौधे में तो और कम है. वही जब मानव शरीर में आ गए तो it's like unlimited potential. It's pretty much you can use the same consciousness. चूहे में है, मछली में है, कुत्ते में है, पेड़ पौधे में. So see, qualitatively the same. Right? There is no difference in the quality of the consciousness. लेकिन evolve कितना हुआ है, उसकी प्रगति कितनी हुई है, right? How much progress, पका कितना है, how much ripeness है, how mature it is. This is the maximum in this form. Maximum. So what do we put it for? है ना, जब जेब में पैसे देते रहते हैं, भगवान ने कहा कि we were talking about an example that you have enough money in the market to buy anything you want. That market has everything in the world. And under one roof, anything that you can imagine, you've never seen, you've never heard, but it is still there. You can go and buy that one thing. God has given you, suppose, enough money to buy that. It doesn't matter how expensive. Maybe the most expensive thing ever created. You can still buy it, right? But you can only buy one thing. As soon as you buy that, the money is finished. So, कौन सी चीज खरीदोगे तुम, है ना, ऐसे बाजार में? So, that's what we were talking about. We are here right now. We are in that bazaar. है ना, तो हमारी दुर्गति ऐसी हो गई कि वो खाली बाजार में उलझ गए. ये चीज, वो चीज, वो चीज, वो चीज देखते ही जा रहे हैं. Forgot that I'm here to get that one thing that I'm looking for. And I completely forgot. I lost myself in the purpose. Why am I even here? इस बाजार में भेजा थी जहाँ एक चीज जिससे सारा the full consciousness can explode. I can get all of it with that explosive consciousness, right? When I get that one thing. But what is that one thing? उस पर हमें विचार करना है कि what is the one thing that I want out of this life? What is the one thing that you want out of this life that you have? Is it just a house after house after house, or a car after car after car? Is it a combination of house and car? Are it children? Is it clothes? Is it name, fame? Is it good health? Which is the one thing that you want out of this life? You have to think about it. Otherwise, this is a meaningless session. Otherwise, you have to think about it. And you know me, like a mad dog, right? So, क्योंकि अभी बहुत समय हो गया था ना, like 1/4, 1/2 बाजार घूम के हो गया. अब बीच में भूल ही बैठे कि यहाँ पे खाली देखने के लिए नहीं है, क्योंकि खत्म हो जाए, मर जाएंगे. बाजार तो खत्म नहीं होने वाला है, माया का बाजार. यहाँ की चीज वस्तु खत्म नहीं होने वाली कभी, right? There will always be something new. There will always be something different. There will always be something more, different. Look and observe. Watch your family, your mind, those around you. इसी में उलझ पड़ा समझा कि more, yeah, different. ये variety, ये नहीं वो, या ज़्यादा अलग और फिर combination. Something different, something more, something different. That's just going from one shop to the other shop, constantly only window shopping all our lifetime. You can come to us too, but we haven't even identified what is it that I want. Why am I here? Right? Once that is identified, एक बार पता चले कि ये चाहिए मुझे, then I have enough. I can take out and get that one thing instantly. Right? So I will urge you to meditate on this, to ध्यान करें, to विचार करें कि personally what do I want out of this lifetime? There's an unlimited consciousness दे चुका है, भगवान ने दिया हुआ है. So you can put your consciousness on anything. Actually चिंतामणि है
consciousness of anything and actually get that. ज़्यादातर ऐसे ही होता है, कोई किसी पुरुष को कोई स्त्री प्राप्त करनी हो तो उस पर स्त्री प्राप्त हो जाती है, स्त्री को पुरुष, किसी को घर प्राप्त करना हो, so all our lifetime we work towards it, we get mortgage, we make the down payment, we take the loan, this, that, करके घर प्राप्त हो जाता है. किसी को गाड़ी लेनी हो, गाड़ी, you want some job, you pursue that, you polish up your resume, contact करें, you get that, right? बच्चे को किसी स्कूल में जाना है, so wherever you put your consciousness, that is the chintamani, right? That is the kalpavruksha. Pretty much, for the most part, you can achieve that. So is this what you want? इधर से इधर से उधर से इधर उधर से इधर ऐसे ही जाना है, and then in the end actually काम बाकी रह गया, क्योंकि बाकी सब जो मिला था वो perishable है, right? That is not permanent, that is not going to stay forever, and that is not going to give perpetual joy. आनंद नहीं, permanent joy नहीं प्राप्त होता, बच्चों में से भी नहीं, घर में से भी नहीं, गाड़ी में से भी नहीं, relationship में से भी नहीं, job में से भी नहीं, शरीर में से भी नहीं, show में से भी नहीं, किसी permanent perpetual joy प्राप्त नहीं होता, right? That's all of our experience. It fades and you have to leave, ultimately end. So if I were to ask, what is it that you want? And you have that. You have God's credit card, unlimited, unlimited value on it. That credit card only works one swipe an hour. But that one swipe can carry anything that you want. What will you seek? I'm asking this again not to answer, but to think, because the year is about to end. And another year is about to end. Another year of Gita Yoga, another year of life, another year of being in the US, another year of having a capable body. हमेशा नहीं टिकेगी, है ना? Able body हमेशा नहीं भी, same जो consciousness aware है अभी, हमेशा नहीं रहेगा. So this is a vibrant period of our life. Our able body is very conscious. You can do things. You can go places. You can make things happen. So what is the best use of this? इतना सारा जितनी जो क्षमता प्राप्त हुई है, इतनी कैपेबिलिटी मिली है, उससे तो क्या प्राप्त करना चाहिए, है ना? तो इसका चिंतन करना होगा, right? So feel free to comment if anyone has any thoughts on it. We are here for the 5th chapter. We've been going through some time Karma-Sanyasa Yog. Thank you for your message from India. I got it, but then my apologies if I didn't get last time Palmi Ben was here, and we knew about your whereabouts from us. How was your trip? Some good amount of time, guys. Yeah, so how was it? Chapter 5. 5वें अध्याय का 8वां समीकरण आपने शायद पहले कहा था. Okay. Okay. But yes. अगर आप फिर से कहें, आपका नाम भी उसमें. Yeah, 7. Yeah. So yeah, we'll pick up from there maybe. The last time we did a few more slokas after that. So this one was Yoga Yukto Vishuddhatma Vijitatma Jitendriya. That is the two reasons I like this sloka. One is this is very powerful. The other is like my name on it. Yoga Yukto Vishuddhatma Vijitatma Jitendriya Sarva Bhutatma Bhutatma Kurvan Napina Liptate. So they take Yoga Yukto Vishuddhatma, which is pure, uncontaminated. Right? The Atma Swarup means sthit hai. One who can see the Atma straight, not bothered by the color of the skin. So ये पुरुष है या स्त्री है या मेरा वाला है या दूसरे वाला है, अच्छा है बुरा है, straight looking at the Atma or अपने और भी, not hating myself for who I am, what I have achieved or not achieved, but always ever staying in the consciousness that I'm actually the Atma. Never mind the body. You are also actually the Atma, and you and you and you, and therefore in the Atma we are the one and the same. जैसे लहर चल रही है समुद्र में, एक लहर दूसरी लहर की ओर देख रही है, तीसरी लहर की ओर देख रही है, एक बड़ी लहर है, एक छोटी लहर है, किसी अभी कोई पीक पे आ गई है, कोई नीचे गिरी हुई है, कोई तो खड्डे में गई हुई है, किसी में मछली है, किसी में नहीं, कोई लहर चमक रही है, कोई नहीं चमक रही है ना, डिपेंडिंग ऑन एंगल ये वो, लेकिन जो लहर पता चल जाए कि ये लहर में कुछ नहीं है, सब ये सेम है, मैं भी वही पानी हूँ, ये भी वही पानी है, ये बड़ी दिख रही है, इसका मतलब इसका अपना कोई बड़ापन नहीं है, इसमें हवा ज़्यादा घुस गई है ना, तो wind has blown, इसको पुश किया, इसलिए अभी ऊपर उठे, अभी देखते देखते नीचे गिर जाएगी, फिर ये लहर बड़ी लहर ये छोटी हो जाएगी, इनफैक्ट 1000 पीसेस में स्कैटर हो जाएगी,
इसमें नहीं मुझे उलझना, लेकिन वही पानी है जो मुझ में है। आई डोंट वांट टू गेट डिप्रेस्ड बिकॉज मैं छोटी हूँ, है ना, ऐसे छोटी दिख रही है, छोटापन भी कोई सच नहीं, जैसे उसका बड़ापन सच नहीं है वैसे मेरे छोटापन भी सच नहीं है। लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊँ तब मुझे गर्व से फूल भी नहीं जाना है कि मैं बड़ा हो गया, मेरे पास ये आ गया, वो आ गया, नाम हो गया। लेकिन ये तो नाम रूप का कोई महत्व ही नहीं है, ये तो टेम्पररी, किसी दूसरे ने थोड़े समय के लिए धक्का दे के बनाया हुआ है, राइट। तो हवा ने धक्का दिया इसलिए ऊपर उठ गया, अभी वो हवा हट जाता है अभी नीचे धस जाए, तो कोई वो पानी का, लेकिन वास्तव में एक ही है, पानी ही पानी है। तो ये जो योग युक्त विशुद्ध आत्मा, जो द प्योरिटी ऑफ दैट साइड, द क्लैरिटी ऑफ साइड, द इंटेग्रिटी ऑफ दैट साइड, जो बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंगली at all times, in all circumstances, ये देख पाए कि that may be, there may be variations, there may be differences, apparently, ऊपर ऊपर देखने के लिए अलग से दिख रहा है सब लोग, है ना, कोई स्त्री दिख रही है, कोई पुरुष दिख रहा है, कोई गरीब, कोई श्रीमंत, जो जैसे अपेरेंट है, अपीयर होने वाले, जो अपीयर होगा वो डिसअपीयर भी होगा, होता ही है, that's not permanent, but the substance in it, God is carrying it, लहर को कैरी कौन करा, पानी करा ना, पानी अगर न होता तो ऊपर नीचे कौन जाता था, there wouldn't be anything like a tarang, like a lahar. So this substance is always there, and the substance is always the same. In fact, substance mix, यही लहर अभी यहाँ थी अभी वहाँ है. There is no two different substances. The substance is only one, right? So that's the Vishuddha Atma, जो purity, Atma की clarity, जय श्री कृष्ण. So योग युक्त जो योग में स्थित है, योग के साथ एक हुआ है. And what is yoga? I mean, whole Gita is about yoga. So, in fact, I brought a holiday gift for you all. I created a slide, a PowerPoint slide, a 13-page slide that I'll pass around, and we'll spend some time on it. Because I thought that this is the last month of the year, so we should capture everything that we did in this year, right? So it would be nice to be able to capture in one page, or one page as if it is. So we'll go over that, and that has yoga in it also. So yoga yukta, the one who's filled with yoga. Yukta means बिल्कुल भरा हुआ है. Yoga yukta vishuddha atma, इतना pure, uncontaminated, uncompromised, right? कोई मिलावट ना हो. विजित आत्मा, आत्मा को आत्मा के द्वारा जीत लिया है. मतलब जो बिल्कुल अभी आत्मा में स्थित है, जिस तरह जैसे the way I was describing right now, जिसके लिए दूसरा कोई विजन ही नहीं है, अपेरेंट विजन में फंसने वाला नहीं है, राइट. योग युक्त विशुद्ध आत्मा. I told you, Madhi son, like every few minutes somebody sings her. I'm leaving it on because अंत में जब हम लोग ध्यान करेंगे, Kana has told us that ध्यान, so maybe I'll turn it off. योग युक्त विशुद्ध आत्मा. इतने दिनों से मेरा फोन रहता था, आज तक कभी नहीं सुना तुमने, राइट. देखो, that's the difference. This is the mother. ये जो ब्रह्म खाली बैठा रहता है, ना, जब बाप बनता है, जो ब्रह्म जी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है, गीता में भी कहते हैं, भगवान अपने लिए भी कहते हैं, 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग. I do nothing. I just am. No, I don't mess with anyone's karma. I don't take up no obligation. I don't touch. I do nothing. It's the mother, प्रकृति, जो मेरी अष्टदा प्रकृति है, वो सब कुछ करती है, सारा कार्य उसके. ऐसे ही माता का स्वरूप होता है. जब चलता है तो माता के भरोसे ही चलता है ना. आदमी तो अपना एक काम के लिए जाता है, उतना करता है, बस बात है, हम कुछ करें इसलिए नो वन टैक्स मी, नो वन डज नथिंग. यहाँ पर हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ आता है, मतलब नया माल. तो जो अपने ब्रह्म भाव में स्थित हो, योग युक्त विशुद्धात्मा, विजितात्मा, इंद्रिय, इंद्रिय के पर संयम है. वी वेंट ओवर दिस लास्ट टाइम, सो वी वांट टू रिपीट. जो जितना अप्रोप्रिएट, जो उचित है, जिस समय के लिए अप्रोप्रिएट है और जितना आवश्यक है, उतना ही जो ग्रहण करे, राइट. तो जितना आवश्यक है और उचित है उतना ही ग्रहण करे, उससे ज़्यादा नहीं. जो खाना चाहिए और जितना खाना चाहिए वो ही खाए और उतना ही खाए. जो देखना चाहिए और जितना देखना चाहिए वही देखे और उतना ही देखे, है ना. जो कहना चाहिए और जितना कहना चाहिए उतना ही कहे और वही कहे. जो सुनना चाहिए, जितना सुनना चाहिए उतना ही सुने, वही सुने, राइट. तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 इंद्रियों से जो योग्य, उचित है, जो पोषक है, जो शोषक नहीं है, राइट. शोषण जो करे, जो दृश्य देखे, ऐसा दृश्य न देखे जो मेरा शोषण करे. मेरा शोषण कैसे होगा? जो मुझे अपनी आत्मस्थिति से दूर ले जाएगा, राइट.
one shoshan, and there is only one portion. And everything we take in through ये 5 इंद्रियों द्वारा आज एक तो पोषण करेगा या शोषण करेगा, तो में से होगा ही होगा, right? And we have the power. जो जितेंद्रिय कौन होगा, जो अपने अकल का उपयोग करेगा. Use your discretion. Which one do you want, right? पोषक हो वो या शोषक हो. शोषण मतलब sucker, sucking, degrading, एनर्जी को निकाल देगा हमें, तो वीक कर देगा हमें, है ना, गरीब बना देगा, मोहताज बना देगा, लाचार बना देगा, डिपेंडेंट बना देगा, एडिक्टिव बना देगा. दैट्स शोषण, अप्रेसिव. और दूसरा पोषण जो न्यूट्रिशन, जो स्ट्रेंथन करेगा, एम्पावर करेगा, स्ट्रॉन्गर बनाएगा, इंडिपेंडेंट बनाएगा, अपने आप में स्थित बनाएगा, राइट. तो ग्रहण ऐसा ही करे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो हमें हमारा पोषक हो, हमारा पोषण करे, स्ट्रेंथन करे. तो वो हाउ डू वी नो पोषक है या शोषक है, राइट. Like I said, there's only one shoshan in all of the world, and there's only one portion in all of the world. ऐसा ही मैंने एक बार पहले, कुछ महीने पहले कहा था शास्त्रों के आधार से, there's only one path and there's only one punya, right? And there's one and a half path punya. Does anyone remember that? Okay, great. So that one and a half में से जो one है, that is the portion shoshan वाली जो बात है, जो हमें अपनी आत्मा की स्थिति की ओर ले जाए और उसमें स्थित करे, वो पोषण करने वाला है. The one who familiarizes with my true self, कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये मैं नाम का जो है ये कुछ नहीं है. And therefore मेरा जो है, मेरा, ये अगर मैं ही नहीं तो मेरा कैसे होगा, right? जो ये बढ़ाए भावना की ये मैं, ये मेरा, वो शोषण करने वाला. जितना अंधकार की ओर ले जाए, जितना अज्ञान की ओर ले जाए, जितना ज्ञान से दूर ले जाए, भ्रम में डाल दे, कंफ्यूज कर दे, उल्टा ज्ञान पढ़ा दे, है ना, और हमारी इच्छा, तृष्णा, वासना बढ़ाए, अगन बढ़ा दे, ये सब शोषण हुआ, डिपेंडेंट बना दे, है ना, एडिक्टिव बना दे. अशांति इन द एंड, हाउ डू यू नो, अशांति इन द एंड वी विल बी लेफ्ट विद अशांति. तब वो काम खत्म होने के बाद अशांति, टेम्पररी शांति अगर मिलेगी, वो शो देख करके या वो खाना खा के या गाना बजा के, लेकिन बाद में परमानेंट शांति का अनुभव जो ना हो. पोषक वो जो हमें अपनी आत्मस्थिति को ले जाए, द रियल नेचर, द रियल ट्रूली, जो हमें इंडिपेंडेंट बनाए, है ना, दैट वी विल नॉट बी एज डिपेंडेंट ऑन माय बॉडी और व्हाट पीपल थिंक अबाउट माय बॉडी और हाउ मच वेल्थ आई हैव और मेरा नाम हो रहा है या नहीं, ये सब जो ऊपर के लगे हुए हैं इनसे. तो जितेंद्रिय वो हो जो स्वयं का पोषण करे और दूसरों का पोषण करे, राइट, एसेंशियली शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध द्वारा. और अदरवाइज तो उसे स्वामी जी कहे, जो अदरवाइज इंद्रियों का जो सेवक हो. लास्ट टाइम आई थिंक आई सेड कि या तो हम घोड़े पर बैठ सकते हैं लगाम लेकर के, या घोड़े की पूंछ पकड़ के फिर द घोड़ा विल ड्रैग अस, राइट. इफ यू होल्ड ऑन टू द टेल घोड़े की, तो वो ले जाएगा, ब्रूज एंड ब्लडी होकर के जहाँ घोड़ा ले जाएगा वहाँ जाना पड़ेगा झट मार के. लेकिन एक पुरुषार्थ करके अगर हम घोड़े के ऊपर बैठ जाए और उसकी लगाम लेकर के घोड़ा हम जहाँ जाना चाहते वहाँ जाएगा. ऐसे जो इंद्रियों को संयम कर पाए, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन इट्स वेरी एम्पावरिंग, इट्स वेरी लिबरेटिंग, वेरी स्ट्रेंथनिंग. You are in control. You feel like a master and not a slave. ना, otherwise you feel like a slave. अंदर ही अंदर ग्लानि आती है. We hate ourselves. अंदर ही अंदर फिर नहीं कर पाते. And we don't want that. We don't like that. We don't deserve that because that's not our real nature. That's why we hate it. We would not hate it if that truly अगर हम ऐसे होते तो we would have liked it. That is why we don't like it, because that's not me, right? That's not how I am. Atma Swarup में हम completely independent हैं, free of all bondage, completely liberated. Nothing can stop us. We are not dependent on anything. सब कुछ मिलेगा, कोई कुछ देगा, ज्यादा देगा तब और आनंद मिलेगा, ऐसी बात नहीं है हमारी वास्तविक स्थिति चेतन स्वरूप में. तो योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा, जो मैंने शुरू में कहा कि सभी भूतों में, सभी आकारधारियों में जो आत्मा है वो अपनी आत्मा के साथ एकता जो देख पाता है. You know, I am the same. I am in you, brother. I am in you, sister. You know, your brother or sister somewhere, because you're taking different forms, I'm calling you. But in fact, I am in you and I am in you. There is no brother and divinity. So in fact, it's just you can take your pick. अगर प्रेम ही हृदय हो
कहेगा तू ही तू है। अगर ज्ञानी हृदय हो तो कहेगा मैं ही मैं हूँ। That's all right. दोनों एक ही बात है, as long as there is one, right? अद्वैत वेदांत की बात है ना। जो इमोशनल होगा, जो प्रेमी होगा, सॉफ्ट हार्टेड होगा, कवि हृदय होगा या गधा होगा, मैं अपने लिए कहता हूँ, वो ये कह देगा कि तू ही तू है भैया, तू ही तू है ना। कृष्ण के लिए तू ही तू है। I don't know who I am. I don't even exist. What is this thing called I? Where am I? Who am I? I don't know and I don't want to know. It's not about me. You alone exist. Look, you alone exist. कोई उल्टा दिखाएगा। ज्ञान की दृष्टि से अगर देखे तो जो मैं अपने आप अंदर अनुभव कर रहा हूँ, मैं हूँ, अस्तित्व का, वही तो सब कुछ है। तो जैसे एक दूसरी लहर की ओर देखे, coming back to that example, right? The ocean waves, there are the thousands of waves that are going up and down. One of the waves gets it, suppose, and says, oh my God, the water that's in me is the same water that's in him and her and you and them, and all of them. Look, I alone exist everywhere. I, the water, alone exists everywhere. Another leher might see the same thing and say, oh my God, this beautiful wave. इसमें जो पानी वो ही सब में है, इसमें भी, और look, मेरे में भी उसी का पानी. Oh my God, you alone exist, right? And it's the same thing, whether I use the word you or I use the word I, but in substance, it's the same. Tattva, दृष्टि से, in principle, tattva दृष्टि से एक ही है. So it doesn't matter. और कोई और ऊपर उठेगा तो कहेगा, look, the whole ocean. The whole thing is the ocean. It's not about the wave. It's not about the water. It's the ocean that contains it all. The same Paramatma, Paramatma, right? All of us, everything is in the ocean. So I'll leave you with that thought. अपने दृष्टि से, अपनी समझ से इस पर ध्यान करें. Please, so what's the big deal about that? इस श्लोक में, so who cares? जो सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते. That's the big deal. वो जो करना पड़े वो सब कुछ करेगा, लेकिन लेपायमान नहीं होगा, स्टेन नहीं होगा, उस पर दाग नहीं लगेगा, कर्म के बंधन नहीं होंगे. कर्म का जो दुख होता है, कर्म बांधता है ना. That is why people are afraid of karma. Everybody says कर्म का बंधन, कर्म बांधता है. तो हमें तो छुटना है, right? You want मुक्ति, not बंधन. और मोक्ष चाहते हैं, कैवल्य चाहते हैं, जो ये सब, these are all different words for मुक्ति. तो इसलिए कर्म से डरते हैं, कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पाप पुण्य, अदरवाइज कर्म बांध लेगा, मैं तो छुटना चाहता हूँ. यहाँ कहते हैं इस दृष्टि से जो करना है, जो करेगा उसको बांधेगा नहीं. कुर्वन् अपि, करेगा फिर भी, न लिप्यते, कोई एक दाग न लगेगा, कोई कर्म का बंधन नहीं होगा, क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी है. अपने स्वार्थ प्रेरित, अपने लिए लिमिटेड भी से कुछ नहीं हो रहा. जहाँ भी जैसे भी जा रही है वो व्यक्ति फिर सब जो भी कर्म हो रहा है, for the good of everyone. It's very naturally done. It's very spontaneously done. It's done. She is then doing whatever she is doing for the good of all, with no trace of selfish desire. Right? So that was the shlok number 7. That's when you had left. After that, we covered a few shloks. By the way, इसका translation यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर की गीता में है. जिसका मन अपने यश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला है, तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होगा. The reason I asked you about it, I heard the different perspectives. Meaning could be same, but the way it was explained was a little different. That every instrument, bahya upkaran, मतलब जैसे all five indriyas and all that, our hand, our eyes, our nose, they have their own what do you call brain or their own identity. They behave in such a way that sometimes you don't have to tell, you inside don't have to tell to take the step. So let them do their step. Don't get into such a way that you support those things in a way that it affects you. As in, you know. Don't temper. Yeah. And once you come to that state, then what happens is, then you are basically, you are going towards Antagara, then Bahyaga. So once you don't support them, then you become yourself, you distance them, and you become a drashta, then associate with yourself. बहुत फर्स्ट क्लास
Very nice. No, it makes a lot of sense, and it's true. So but that is the next slope. इसमें वो elaborately बताते हैं कि जैसे अभी जैसे I'll read it in Hindi from here. तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, सोता हुआ, गमन करता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं तो कुछ भी नहीं करता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये सब अपना अपना काम करे। आँख है तो देख रही है, कान है तो सुन रहा है, नाक है तो सूंघ रहा है, जीवा है तो चख रही है, और स्किन है, त्वचा है तो स्पर्श का अनुभव कर रही है। मैं कहाँ क्या कुछ कर रहा हूँ, है ना? I'm neither the eye, nor the ear, nor the nose. तो लेकिन उनको अपना अपना काम करने के wherever naturally they fall. So then that separation starts to help with the sakshi power, with the distinction, right? Yeah, excellent. बहुत अच्छा. And you're right. Absolutely, the interpretation is spot on. So the next one also we've done कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। This is where we start last time. मैं कहा था कि पंकज नाम जो हम लोग सुनते हैं ना, आज पंख मतलब कीचड़ में से जो जन्मा हो वो कमल, इसलिए कहते हैं पद्म पत्रेन मिवाम बसा कि कमल के पत्ते पर पानी रहते तो फिसल जाए बार बार, कितना भी पानी में डूबे तो भी। दो बातें, एक तो कीचड़ से जन्मा है लेकिन खुद कितना सच्चा, इतना पवित्र कि वो भगवान के सबसे प्यारा बन गया, है ना? The environment, the surroundings, the circumstances don't always control. We have a choice how beautiful we want to become and remain. It's our choice. How pretty, how fragrant, कितना कोमल हृदय, कितना शुद्ध अंतःकरण होना, ये हमारे बस की बात है, not the circumstances. कमल का जैसा उदाहरण दिया जाता है, इतना कि वो वहाँ तो बिल्कुल भगवान के चरणों में, भगवान के हाथ में, भगवान के सिर पर पहुँच जाए, है ना? तो उसके होने के लिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर द मेन बिहेवियर इज कर्मों में आसक्त, फल में आसक्त न हो, नॉट डूइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग फॉर माय ओन सेक। वो विफम जो कहते हैं, व्हाट्स इन इट फॉर मी, stay away from the Wilhelm syndrome, right? Not thinking about what's in it for me. I'm doing it because it's there to be done, not because there's something in it for me. You know? So, and then we had said the next time we will start with the next sloka. So maybe you can do one or two slokas, and then I can give you your holiday gift, and you can go. We can go over it, right? It's a pretty unimpressive gift. I said there's nothing fancy. It's not a thing. This is it. It's a piece of paper, but I think it carries a lot of weight in it. I think you'll see. So आगे का श्लोक है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फलो सक्तो निबध्यते। इसके हिंदी में है, कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, है ना? द होल थीम भगवद गीता इज कर्म से छुट्टी नहीं है, कर्म से भागना नहीं है, कर्म तो करना ही होगा, राइट? द थर्ड चैप्टर, remember chapter 1 was because Arjun did not want to do the karma. Na yodhite iti govindam, right? It's a negative thought. I don't want to fight. Na yodhite iti govindam. That's what Arjun starts saying. Or कर्मण्येव अधिकारस्य, right? कर्मणि एव हि अधिकारस्य। भगवान उसके उत्तर में कहते हैं न योधिते, कर्मण्येव ही अधिकार है, कर्म ही करना पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। And then we went to third chapter, third, fourth. तो यहाँ पे कहते हैं कि कर्म केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना। In the fourth chapter we heard about
ज्ञान की प्राप्ति के लिए काम करना है. We talked a lot about that. We identify the purpose behind it. Why am I doing what I'm doing? I want to learn from what I'm doing. The value of whatever I'm doing is not in the fall, is not in the reward, is not in the thing that I get, but it's in the lesson that I learn. जो भी कर्म किया उसके बाद मुझे पैसा कितना मिला है, नाम कितना हुआ, प्रशंसा कितनी, उसमें नहीं, उससे सीखने को क्या मिला. What should I do and what should I not do? How should I do? How should I do? Why should I do? What matters? What doesn't matter? What will stay? What will not stay? Right? Sat asat vivek buddhi. इसमें से धीरे धीरे फाइन ट्यूनिंग और इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए और क्लैरिटी और क्लैरिटी और क्लैरिटी ऑन लाइफ. व्हाट इज वर्थ इट, व्हाट इज नॉट वर्थ इट. जितना जितना काम करे उतनी उतनी क्लैरिटी आती जाए. उसके लिए दैट्स व्हाट बेसिकली द premise of the fourth chapter was. Not for the fruit, not for the thing. वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए करना. The main theme of chapter 4, which we did months ago, was कर्म करना. Third chapter was कर्म करना ही पड़ेगा. Right? Fourth chapter was कर्म इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि अपने स्वार्थ के लिए क्या प्राप्त करना है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे सीखने क्या मिलेगा. What am I learning from it? So that theme is taken forward कि कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहे. ममत्व मतलब मेरापन. मम मेरा, right? बुद्धि रहित, rid of selfish desire, rid of selfish thought, without thinking of what's in it for me. केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्यागकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं. Inner purification. It's like an austerity. It's like a तपस्या. है ना, शुद्धि के लिए जो की जाती है. तप समझकर जीवन को जिए. जो भी कर्म करना है, पिता बन गए तो फिर नौकरी करके, जो भी जॉब करके या बिजनेस करके, जैसे भी को पैसे कमा के जाए. It should be our तपस्या of a father to go work hard and earn the money that is necessary, but with the aim of tapasya, not with the aim of personal gratification, with the aim of personal name and fame, with the aim of personal wealth, in the name of tapasya. यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते. We heard about it. यज्ञ की भावना से कर्म, sacrifice की भावना से कर्म, स्वार्थ रहित की भावना, सबके मंगल, सबके हित की भावना से कर्म होंगे. तो जितना वो हित की जो भावना है वो सोल को प्योरीफाई करेगी. कि अंदर में कोई ब्रश डाल के, कोई स्नेक डाल के, इतना क्लीन और सोल, मैटर से सोल क्लीन नहीं हो सकता. राइट? बिकॉज सोल इज स्पिरिट, सोल इज स्पिरिचुअल, सोल इज सटल. ना, दिस इज अ फाइन कॉन्सेप्ट. आई वांट यू टू स्टे विद मी. इसीलिए ध्यान भी करते हैं, इसीलिए मेडिटेशन भी करते हैं. देखो अभी ये शब्द सुनाई दे रहे हैं तो इट्स इन द फॉर्म ऑफ मैटर. राइट? शब्द इज फ्रॉम द फॉर्म ऑफ मैटर. बिकॉज जो मैं अपनी जीवा को हिला रहा हूँ, वैसे ये हवा हिल रही है, ऐसे कान पर पड़ रहा है, वैसे ऑल ऑफ दिस इज मैटर. लेकिन शब्द का अर्थ इज नॉट मैटर. इज इट? शब्द के पीछे जो अर्थ समझ में आ रहा है, दैट्स नॉट मैटर. देयर इज नो एक्सचेंज. शब्द जो हो रहा है उसमें एक्सचेंज हो रहा है. माई वाइब्रेशन आर एक्सचेंजिंग विद योर ईयर ड्रम्स वाइब्रेशन. राइट? अर्थ में कोई वाइब्रेशन नहीं है. खाते भूख लगी, खाए तो अन्न खाया तो मैटर हुआ. लेकिन जो भूख लगी थी और भूख चली गई, उसमें कोई मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ. है ना? प्रेम जब हुआ, बच्चे को प्रेम आया, जैसे फिजिकल गिव अ हग, उसमें मैटर एक्सचेंज हुआ. मैटर केम नियर मैटर. लेकिन जो भावना शांत हुई, तृप्त हुई, प्रेम की प्यास थी और प्रेम की प्राप्ति हुई और प्रेम का अनुभव हो रहा है, तो उसमें कहीं मैटर एक्सचेंज नहीं हुआ. There is no such thing as love that you carry with you or buy or more or less. That's the spiritual, that's right? दैवी संपदा कही जाती है. तो ऐसे ही शब्द के पीछे जो उसका अर्थ है वो that's spiritual. तो कर्म इसलिए करे, कर्म इज मैटर, कर्म के द्वारा कि उससे जो सीखने मिल रहा है, the understanding that I'm getting, the clarity of thought, the clarity of vision, the clarity of truth, that is spiritual. तो उसके द्वारा आत्मा की शुद्धि होगी. नाक तो मैं साफ कर सकता हूँ पंप्स के द्वारा. राइट? जीवा को साफ कर सकता हूँ टंग क्लीनर के द्वारा, क्यूटिप के द्वारा कान को साफ कर सकता हूँ, पानी डालकर आँख को साफ करता हूँ, साबुन तेल लगाकर स्किन को साफ कर सकता हूँ. तो ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की जरूरत नहीं हो. लेकिन आत्मा को कैसे साफ करूँ मैं? मेन प्रॉब्लम तो आत्मा मलिन हो गया, यही है ना. आत्मा पर जो लेयर्स लग गए, आत्मा तो मलिन नहीं होता है, राइट? तो नहीं पता. लेकिन आत्मा पर जो लेयर्स लग गए, वी हर्ड अबाउट दिस, वी बिलीव इट, वी नो अबाउट दिस, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दिस. राइट?
ऐसे ही हुआ है ना, आत्मा पर आवरण पड़ गया है अविद्या का, उसको साफ कैसे करो? राइट, isn't that the main job we have to do here? The job is not बच्चों को कॉलेज भेजे, इनको और ऊपर बनाए, इसकी शादी कर दे, दिवाली बनाए, गरबा करे, none of that. ये होगा होता रहेगा, नहीं होगा doesn't matter. मेन काम तो ये है ना, आत्मा को शुद्धि करनी है, राइट? कम से कम गीता, कम से कम महीने में एक बार तो मेन काम यही करना है। जब यहाँ ना चले भाई गया तो करे कैसे उसको साफ? कौन सा साबुन लाया, कौन सा तेल लाया, कौन सा ब्रश लाया, कहाँ डाले, राइट? उसको साफ करने के लिए where should I clean it? तो दिस श्लोक से कि जो योगी होता है समझता है कि इन कर्मों द्वारा जो मैं लेसन लर्न करता हूँ, those are the brushes, that is what cleanses my soul and clarifies and tests. So does that make sense? This is the lessons that I'm learning. अब जितना निस्वार्थ होते गए, जितना कमिटेड रहते गए, अपने धर्म निष्ठ होते गए, उतनी सोल की क्लैरिटी, यहाँ तक कि जब पूर्ण क्लियर हो जाए तब उसके बाद पूर्ण स्थिति में कर्म किया तो भी ठीक, न किया तो भी ठीक, जो हुआ न हुआ, then it's no longer about karma. Then you no longer need the soap or the oil or anything because it's been cleansed. So that's what this श्लोक was. कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर। So, आसक्ति का आवरण लगा हुआ है. You don't want more layers, है ना? साबुन जब लगा दिया तो उसके साथ साबुन के साथ और कीचड़ भी लगा दिया तो फिर वो नहीं हो गए, they will cancel each other out. ऐसे कर्म करते समय कर्म क्यों कर रहे हैं? आप कर्म से क्लीनलीनेस करनी, बुद्धि, शरीर, मन के, उसके साथ आसक्ति भी फिर से आ गई तो that's like soap and कीचड़ एक साथ. कहीं पे मुल्तानी मिट्टी नहीं है कि different thing that clarify करने के लिए तो आसक्ति है, लेकिन जा नहीं सकती, आ ही सकती है. तो आसक्ति न हो, बिल्कुल अपना पर्सनल अटैचमेंट न हो, अपने आग्रह से न हो, अपने दुराग्रह से न हो. So and then the next slok which like I said, we'll make it the last slok and then we'll get it to anti mode. कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है. तो फल की आसक्ति, फल की आशा, फल की इच्छा, फल की तृष्णा ही बांधने वाले. कर्म नहीं बांधते. आज तक हमने सुना कर्म का बंधन, कर्म बंधन. कर्म बांधते नहीं, कर्म जड़ है. कर्म को जड़ कहा है, मीनिंग दे डोंट नो. कर्म को कुछ पता नहीं कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको बांधो, इसको पकड़ो, इसको छोड़ दो. कर्म इज नॉट कॉन्शियस, कर्म इज नॉट सेल्फ कॉन्शियस, कर्म डजंट हैव एनी मोटिव. इसमें जो फल छिपा है, फल की जो आसक्ति है वो बांधने वाली होती है. वो कॉन्शियस है क्योंकि उसको हमने अपना कॉन्शियसनेस दिया, राइट. कर्म के फल की अपेक्षा जो है उसको हमने अपना कॉन्शियसनेस दिया है कि आई वांट पहले ही कॉन्शियसनेस दिया, आई वांट हो गया, दिस थिंग, दिस फ्रूट, ऐसा हो, वैसा हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो. ऑल ऑफ दिस कॉन्शियसनेस, राइट. सो वी ब्रॉट इट टू लाइफ. I, the consciousness, only I have consciousness, not the karma that I'm doing, not even the phala. इसके द्वारा जो everything is jad. I alone am the conscious entity. लेकिन मैं उसके साथ चिपक गया, उसके साथ आइडेंटिफाई आ गया. कर्म के साथ भी आसक्ति होगी, इतना करना ही है, ऐसा ही करना है, ये मेरा ही है, मैं ही करूँगा, तुमने नहीं करना है, बेकार कर दिया काम, ऐसा सब जिसका वो कर्म एकदम as if came back to life, because I चिपक गया, उसका आइडेंटिफाई हो गया. या तो फिर फल के साथ होकर के. You do want to separate yourself from the karma and the karma phala. Right? कर्म करते समय know that karma is jad. इसका ध्यान दे, right? जब कर्म होगा तब. And always know that you are far superior, कर्ता. You are like the king, or you इसकी नौकरी की भी कीमत. It's like a dead person, karma. So don't attach, don't identify with the karma, and definitely not with the karma phala. कर्म फल चिपक जाएगा, फिर नहीं छूटेगा, फिर नहीं छोड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी छोड़ने के लिए. That's the message that the श्लोक is carrying. Again, कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है. When you let go
What is left is Shanti. Just a very simple concept. When you prepare to let go, when you actually let go, what is left, the residue, is only Shanti. दूसरा तो है शांति शांत है, जीवन ही शांत है, वातावरण शांत है, मन शांत है, प्रसन्न चित्त है, सब अच्छा, सब ठीक है जब लेट गो कर दिया था यहाँ पर जितना है। और जब तक वो नहीं हुआ, लेट गो नहीं किया, तब कुछ शांत हो ही नहीं सकता है ना, अशांति है, अशांति है। तो जो इस भावना से कर्म करेगा वो भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकाम पुरुष, कामना की भावना, सकाम कुछ चाहिए है, attached है, not unattached, right? Sakam is attached. This is my work, or this, therefore this is my, I put my own energy in it, I put my time in it, I invested my money in it, I gave it attention, these are my people, this is my son. ऐसे कहते हैं, ये जब इसमें जो invest किया अपने आप को, so what are you investing? You're investing your consciousness. You're not investing your body. Body is dead. पहले से जब जन्म की तब से dead थी, है ना? जब consciousness निकल जाएगा तो उसको जलाने ले जाएंगे. Not the body that you're investing. You're investing your consciousness. You're investing you. इसमें इसलिए उसको जीवन आ गया. And इतना पागलपन हो गया उसमें कि then we identify with that thing. अपने आप को भूल करके जो इसका रिजल्ट है ना, उसका फल जो होगा, हमारी आइडेंटिटी उसके साथ कंफ्यूज, वन विद इट. अगर वो काम होगा तो ही मैं सक्सेस होऊंगा, वो काम बन जाएगा तो ही मेरा सक्सेस हो जाएगा, नहीं तो ऑल इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज बैड, एवरीथिंग इज रॉन्ग, बिकॉज दैट थिंग डिडंट वर्क. ब्रदर, दैट थिंग हैड नथिंग टू डू विथ यू, इट नेवर हैज एनीथिंग टू डू विथ यू. ये साक्षी जो कहते हो, you are all the same, always the same. Nothing affects you. No one can change you. No one has the power to shake you from your place. You identified yourself on your own, अपनी choice से, उस फल के साथ लेकर के. और फिर अभी इतना चिपक गए, इतना भूल गए. जैसे मैंने कहा, बाजार में गए कि एक वस्तु कोई खरीदने के लिए उससे काम हो जाएगा, लेकिन ये मार्केट में खो गए, ये लूटी वो लूटी, completely forgot the purpose of it. Right? So you want to be careful. कोई भी काम करते समय, while raising children, while doing job, while also sitting, जो भी काम करते, समाज सेवा करते हो, मंदिर में करते हो, जो भी, we don't want to invest our consciousness, we don't want to identify with it. उसको execute करें, काम खत्म कर दें, है ना, मशीन की नहीं, almost robotically. And that there is a good thing about it, because काम बहुत first class होगा. जब personally identify नहीं हो गए, try it. When you will do work for the sake of work, it will be first class done. And a mess up होता है जब तक we identify ourselves too much with it. ये मेरा काम है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. But if you really stay focused, laser sharp focus on doing the best job that can be done, ये जो instrument मिला है, right? इस उपकरणों द्वारा जितना अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बड़ा रोटी बन सके, ढोकला बन सके, या जो भी ड्राइविंग हो सके, जो भी रॉक क्लाइंबिंग हो सके, whatever it is that you're doing, if you, with these instruments, if you're trying to do the best job that can be done, that will be the best that can be done. सीधी बात है. And you'll move on beyond it. खाने वाले भी सोचे जाएंगे, ऐसा खाना नहीं खाया. So, and you will, the benefit is you will not feel tired. I guarantee you, 100%. There will be कोई कष्ट की भावना नहीं होगी. इतनी मेहनत करने पड़ी, थकान नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा नहीं थका. जब आत्मा की भावना से करोगे तो शरीर से उससे ध्यान भी नहीं जाएगा. वेरी एफिशिएंट, वेरी इफेक्टिव काम होगा. जब उसके फल से जब छूट जाएगा, लेट गो जब हो जाएगा, तो ओनली शांति लेफ्ट. अगेन, when you are able to let go, there is only shanti. You don't have to go anywhere to look for shanti. You don't have to do anything to look for shanti. You don't have to listen to anyone. You definitely not this. You don't have to read anything. You have to do nothing for shanti. You just have to let go. You have to undo. Right? You don't have to do. You have to undo for shanti. So, let me pause here for a moment. You can go around if anyone has any thoughts, comments, and then I can share some of thoughts on paper. और उसके बाद अगर समय हो, बच्चों का न हुआ हो, तो we can then do another shloka or so. Does this make sense so far, what we talked about? Any thoughts, anything in particular, or you want to say the thoughts to the end?
क्या बात है. No, so for those who came late, I know जो पहले आए थे उनके लिए थोड़ा बोर होगा, but hopefully you will think seriously about it. Where we started today's session was जैसे कि पैनासिया एक नाम का एक अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट है, which is to cure all, right? ऐसी दवा, ऐसी गोली जो ले तो कोई भी रोग हो तो मिट जाए, है ना? It doesn't matter. Yeah. It's a concept. It's not real. But the peace, right? It's not a concept. It's real. That's what we know. So, जैसे शुरू में कहा था मैंने, for those who were here, कि किसी बाजार में गए, everything under the roof you can find in that bazaar. Anything that you've heard of, think of, and not even heard of, you can get it in that bazaar, right? बाजार में जा सकते हैं. और इतनी पूंजी भगवान ने दे रखी है कि एक वस्तु खरीद सकते हैं बाजार में, right? I'm saying this more for you because they've already heard it. So जाओ घूमो बाजार में, look for what you want, what it is that you want, और ठीक है. It doesn't matter how expensive it is. दो फूटी कौड़ी की वस्तु होगी तो वो खरीद सकोगे इससे. Or the greatest, the most expensive thing that you can imagine, Bill Gates, Mark Zuckerberg, ये सब उठा के सब की बल्ब लगा के भी नहीं टेकन, इससे भी ज़्यादा कीमती हो फिर भी you'll be able to buy it, right? That's how much you have. It's a scalable, right? It can go up and down, but you can only buy one thing, right? One time, one thing only, and so you've been let loose. Jao, chalo, go find out what you want, figure it out, and go get it. So what is it that you want, right? इसमें जो भी कल्पना कर सकते, anything you can imagine, you can all imagine different things, है ना? It's not कि खाली जो देखी सुनी हो, लेकिन कल्पना भी कर सकते हो. So now I'm seriously asking you, what is it that you will want from that? Or actually, and that's your one opportunity. You don't have to answer it. Like, I'm not encouraging you to think about it. In fact, please don't answer it. No, I was just thinking that if you want something within that, if living in today's world, you would want to be everything perfect in your life. So you would want to get something that will make everything perfect according to what you want and what you wish in your life. But this is how the world is going on right now. But if you are looking more from religious perspective, that's never going to happen. Because it's like something, you're running for something that is not achievable. It's something that's always in your soul. Like, I don't know what to say a word, but it's you're going for something that is like a maya or a mo. It's not something that's not the real thing you should be going for. Yeah, not a thing. What's the name? Right? Object, matter name. Yeah. Right. Yeah. So, but even within that, so you're right about what you said, but you will want to clarify, specify. You would want to go much deeper than the broad statement, right? Although it is the right statement, see something that will make everything perfect. But you will want to be able to pinpoint that one thing. Again, I'm calling it a thing, but it's not a thing. And एक प्राप्ति कौन सी हो, कौन सा लाभ हो, और इसके लिए उत्तर है. By the way, I made up the question, but the answer is there is in the scriptures. उपनिषदों में आता है. इस फॉर्म में आता है, आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते. आत्मलाभात् परम ज्ञान, आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते. आत्मा के लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है. आत्मा के ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है. आत्मा की प्राप्ति से बढ़कर कोई प्राप्ति नहीं है. इससे और छठे अध्याय में भगवत गीता के 6th chapter, one of my one of my most, in fact this holiday gift is based on that 6th chapter. इसमें भी आते कि उसमें भी भगवान ऐसे कहते हैं, ध्यान के द्वारा जो बाद में स्थिति प्राप्ति होती है. So I encourage you to identify that. What is that one thing? How would you define अपने ध्यान द्वारा? What is the state of mind? What is the unity consciousness? किसके साथ एकता का अनुभव करना चाहते हो? कैसे? What will rid you of all problems? क्या होगा मन में जिसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम का अनुभव नहीं होगा, है ना? Not dead, है ना? उसके बाद भी ऐसे ही होता है. कैसे?
I don't know. Alive, conscious, vibrantly conscious, more conscious than anyone you see around, right? इतना जीवित अवस्था में लेकिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं, रंजित फ्री बिल्कुल एकदम completely. How can that be? What is it? Because I think that's what we want, essentially. I don't know. How do you put it in the answers are there, already there, but I believe you attach yourself to anything, then you are the one who will be suffering. Yam labdva cha param labha. This is Bhagwan Krishna saying, right? This is my beloved saying, Yam labdva cha param labham manyate na adhikam tata. Yasmin sthitona dukkhena gurunam api vichalyate. Chapter 6. उस प्राप्ति ऐसा प्राप्त होगा इससे, इस साधना द्वारा, इस ध्यान द्वारा, इस गीता योग द्वारा भगवान बता रहे यम लब्ध्वा, इसको प्राप्त करके च अपरम लाभम मन्यते ना अधिकम, इससे बड़ा लाभ हो ही नहीं सकता। ऐसी प्राप्ति हो जाएगी, होती है योगी को। भगवान कहते हैं हम नॉट सेइंग इट, योगी को ऐसी प्राप्ति, इससे बड़ी प्राप्ति, उससे लाभ ही नहीं हो सकता। देयर इज नथिंग ग्रेटर देन दैट। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, उसके परे का लाभ, मन्यते न अधिकम, इससे अधिक है नहीं। यस्मिन् स्थितो न दुखेन, जिसमें स्थित होकर, जिस लाभ को प्राप्त करके योगी गुरुनाम अपनी न विचार, बड़े में बड़ा धक्का लग जाए, बड़े में बड़ा इमेजिनेबल सदमा लग जाए, शॉक इन द वर्ल्ड, राइट, कि कितना दुख होगा और क्या दुख होगा, इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है, इमेजिन कर। फिर भी वो विचलित नहीं होता, शेखनअप नहीं होता, अपनी स्थिति से जो आनंद की जो स्थिति है, जो लाभ की जो प्राप्ति, उससे फिर गिरना नहीं होता उसके बाद, राइट। That is the description in God's word of that state of mind. Something that I think we seek. So instead of seeking that, जैसे हमने कहा अभी दिसंबर हुआ, अभी ये साल खत्म हो गया, और another year gone, and who knows how many running, and how many laps remaining, कितनी laps रही है, right? So what is it that I want in the next lap? What if this is my final lap, right? What if I'm no longer next December 16, 17, 18, जब भी हो तो सकता है, right? I'm not worried about it. It is possible that I'm no longer there at that time. It doesn't bother me. I'm not worried about it. But one thing I'm thinking about is if 1 year is all I'm going to get, what is it that I want from that 1 year? And then उसकी भी कोई guarantee नहीं है. One moment is what we get. The current breath is what we have. The present moment is all that is given. So what do I want? We have to be laser sharp और बुद्धिमान है ना, बुद्धिजीवी है, देसी है, अक्लमंद है, तो IT वाले हैं, सब समझते हैं। तो यहाँ पर अपनी अकल लग जाए, अपनी बुद्धि लग जाए, ऐसी कुछ प्राप्ति हो जाए जिसमें सचमुच में लाभ हो जाए, तो कितना फर्स्ट क्लास काम हो जाएगा। What do I want before this lap is finished? जिससे फिर से कुत्ते के नहीं दौड़ना ही दौड़ना न पड़े, है ना। तो उस बाजार में उस पूंजी को लेकर के गए हैं, तो ये न हो कहीं कि मार्केट विंडो शॉपिंग इधर उधर घूम ही रहे, ठीक ही रहे, ये माल वो माल वो माल वो माल, और बीच में कहीं पर भूल ही गए कि oh my God, I was here to look for that one thing that I want, that I can have. I've been given, granted one thing that I can have. So that punji, that wallet, it's the consciousness that you've been given, or we've been given, awareness, is that price. Wherever you put that, yam yam chintayate kamam tam tam prapnot nishchitam. गीता में नहीं आता है, दूसरे शास्त्रों में है कि जिस विषय पर तुम अपना अवेयरनेस डालोगे वो प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से ऐसे गीता में भी है, लेकिन दिस स्पेसिफिक वर्सेस फ्रॉम समप्लेस आउट। तो जहाँ पर भी हमारा कॉन्शियसनेस, so where is your consciousness is the question that I'm asking, and more importantly, where do you want to put it? It should be put on what you want to achieve. Common sense है, सिंपल बात है, कोई लॉजिक इतने तर्क की बात नहीं है। You should put your priciest stuff on that which is what you want. तो ये क्या बुद्धिमानी है कि इतना कॉन्शियसनेस, इतना ह्यूमन वर्क, रोटी कपड़ा मकान में ये अगर चला है, जो कुत्ता बिल्ली को बिना प्रयास के पाता है ना, उसमें अगर चला जाती है, कैसी बुद्धिमानी है। So look for it. I mean, even if you buy this time next year, even if you've uncovered, even if you've found, I got it, this is what I want, this is what I'm seeking,
बहुत बड़ा काम हो जाएगा, जन्म जन्मों का काम हो जाएगा. ट्रस्ट मी प्लीज. एक साल भर में अगर ये तो पक्का क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाए, precisely exactly what it is that I want, not thing, not matter, right? Because matter will perish, matter will not be that. तो इतना कई जन्मों का काम हो जाएगा जो आज तक नहीं हो पाया. तो इसके बाद बहुत आसान है. Then it is one step, गो खर भागवत में आता है कृष्ण की लीला में. तो इसके बाद संसार गो खर के नहीं छोटा हो जाता है. जो कीचड़ में गाय जाती है तो उसके गो के पैर से जितना खड्डा होता है ना, उसको पार करने में क्या प्रयास है. कोई तो डरे नहीं कि ओ माय गॉड हाउ एम आई गोना क्रॉस दिस, ये खड्डा पानी से भरा हुआ है. ओशन को क्रॉस करने में, बहुत सागर को क्रॉस करने में डर हो, मुश्किल हो, लेकिन गो जो होता है वो गाय गैया का संसार फिर ऐसे हो जाए. The next step, once you identified what it is, next step is short and small and quick. The big deal is about finding out, searching for what it is that I want. So if you haven't found that, then the whole life is gone and just endlessly, thoughtlessly going around, not even knowing why am I here, what am I looking for. That's a very sad life. That's not for you, right? That's not for any human. So let me pass around. I'll give some context to this. Yeah, by the way, your kids upstairs, Madhi at the last minute said I want to pass this around to the children also. So you can have a dinner table conversation. Discuss their interpretation of this. Wow. Happy holidays. So everyone keep one and pass around. It has two sides. I'll give you a few moments to look at it. And बाद में उसको बाजू में रख देना, then we'll talk about it, no distraction. कोई चाहे तो इससे हिंदी में या गुजराती में जैसे भी send an electronic file also, and then you can suit yourself just with the question. So I will go with at least some thoughts around this, and then obviously आप लोग अपने अपने विचार अपनी अपनी दृष्टि से इसका विचार करेंगे. So it's more like a reference chart. So last time मैंने कहा था कि because next session, meaning this session is December, like the last session of the year, that we should recapture everything that we
learned, should we say, abhi tak hai, kam se kam, like trying to get it in a succinct summary form. And so this was something that came in my hand, which I thought I should just put on a piece of paper, rather than just picture is worth 1,000 words, rather than khali shabdon mein describe karne ke liye. So I don't know, some of you may remember jo pehla session tha, kai saal pehle, 20 saal baad jaisi baat ho rahi hai. So I had brought a schematic of pani ka, hai na, jaise as a chemical engineer, just try to make it. बच्चों के लिए किया था, लेकिन I have brought it here कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन हो खाली, तो उससे लेकिन खाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से प्यास नहीं बुझती. अगर कोई प्यासा हो थर्स्टी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो अभी यहाँ बस हवा में भी है, लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझ रही है, तो क्या what's the problem? Because they have to combine, they have to be put together. So if they are next to each other, then why aren't they combining? And the process really requires catalytic agent, catalyst. उसके द्वारा वो process होगी. So and then there is an electrolysis process. That's what the diagram shows. अंत में फिर पानी बनेगा. तो अच्छा पानी तो बन गया, अभी क्यों मेरी प्यास नहीं बुझ रही है? वो पानी पीना पड़ेगा, right? That's what we were saying. You have to drink the water. Ultimately जब तक पानी पिया नहीं जाएगा, तब तक प्यास नहीं बुझेगी. खाली पानी से नहीं होगा. And then we'll walk through the different chapters of the Bhagavad Gita. I still have that schematic. इसी बार फिर चले आऊँगा उससे. कि कौन से चैप्टर से कहाँ पर, how do you liken it, ज्ञान, कर्म, ध्यान, the process of absorption, the catalyst of pani, what is water in that form. On two sides of it was, one was man, one was God, right, Arjuna or Krishna, और जो आदमी है, जो मनुष्य है अर्जुन के रूप में, filled with anxiety, misery, questions, doubts, insecurity, all kinds of unclarity, डर भी है उसके मन में, और इधर भगवान के नीचे सब कुछ पॉजिटिविटी, क्लैरिटी है, सॉल्यूशन इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन, सिक्योरिटी इन प्लेस ऑफ इनसिक्योरिटी, लव इन प्लेस ऑफ confusion or hatred. So all kinds of negativities and questions reside on one end. And when you pass it through the process, that schematic showed, I don't have it today, some of you have seen it, in the end you have all the positive, you have all the answers. No question left. और ऐसे ही भगवत गीता में फॉर एग्जाम्पल 14वें अध्याय में बहुत सुंदर गुणत्रय विभाग योग चैप्टर, ब्यूटीफुल चैप्टर. The second श्लोक of that God says, you know, there's just so much jnana, so much gyan, and there's no end to it. There's no way that Einstein and others put together can even get 1% of gyan together, right? Hari Ananta, Hari Katha Ananta. It is endless, infinite gyan. तो ऐसा नहीं होगा कभी किसी को बहुत सब ज्ञान हो गया, प्राप्त हो गया, लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन को कि लेकिन ये जरूर हो सकता है इस मार्ग पर कि जो सबसे आवश्यक है, जो सबसे कीमती, जो मतलब की बात है ना, वो सब उतना प्राप्त जरूर हो सकता है और उतने से काम हो जाता है. सो ऐसे नहीं होगा गीता योग को पी जाने के बाद कि नाउ आई हैव आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस. लाइक आई कैन नॉट से दैट आई हैव आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस. ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है और ऐसा हुआ है कि I have no question, right? This isn't about I having all the answers to all the questions. I don't have any questions. fulfilled, प्यास बुझ गई है ना, अभी तड़प नहीं, इधर उधर भागा दौड़ नहीं, अभी स्पर्धा नहीं रही, कुछ नहीं रहा. सो सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मत ना, ये ज्ञान ऐसा है कि जैसे मेरे जैसा अनुभव करेगा तू, मम सागम में मेरे जैसा तू हो जाएगा कि जो स्वर्ग मतलब जो सृष्टि बनेगी तब तू ऊपर उठेगा, उठेगा, बनेगा. ऐसा भी नहीं होगा. और जब प्रलय होगा, प्रलय न व्यथित, प्रलय के समय भी व्यथित नहीं होगा, चिंता में नहीं पड़ेगा, दुख में नहीं पड़ेगा, डर नहीं जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, है ना. इस ज्ञान से वो स्थिति प्राप्त हो सकती है और होती है. ये तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि होती है, हो सकती है, होती है बिल्कुल. That's why it is worth pursuing. Totally, है ना. It takes us closest to जो हम चाहते हैं. So that was one. Then as I was thinking through how I have it, this is my personal interpretation. So don't give it too much value. कि किसी संत गुरु ने नहीं कहा हुआ, ऐसे प्रकार नहीं कहा हुआ, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, तो इसकी कीमत विशेष नहीं है. But this has been my experience for sure. This is how I understand Gita. This is how I use the Gita.
and this is how it has always helped me. Right? If you'll ever, as an engineer, as a science, and I've found a Venn diagram that is a team circle, right? And then the common is like this. So funny, everything works in circles in life, it seems. Everything works in circles, in cycles, and there's always something common with everything. कितना भी uncommon हो, लेकिन कुछ ना कुछ common तो मिल ही जाता है. And that's, I guess, the central idea behind the Venn diagram. So, Gita Yog ecosystem, मतलब ये सृष्टि गीता योग का संसार कैसा है, सृष्टि कैसा है, very fragile balance, right? Ecosystem is very fragile but very robust at the same time. जैसे ये सृष्टि की जगह है, very fragile है लेकिन very robust भी at the same time. बिल्कुल everything has its place. फूल की जगह फूल की जगह है, कांटे की जगह कांटा आवश्यक है, कुत्ते की जगह कुत्ते की आवश्यकता है, लेकिन बिल्ली की जगह बिल्ली, शेर भी आवश्यक है, हिरण भी आवश्यक है, मनुष्य कौन, यानी इस सृष्टि में अगर हम देखें तो दैट्स द इकोसिस्टम. बादल की भी आवश्यकता है, समुद्र की भी आवश्यकता है, धूप तपने की भी आवश्यकता है, ठंडी पड़ने की भी आवश्यकता है. Only then the whole balance is kept for a very long time, sustain होता है. And that's the idea behind an ecosystem, right? जिसमें balance है. The main central idea is balance. जो जैसे नहीं गिर न जाए, टूट न पाए. And the biggest promise of the Gita that I have found, so we're concluding now this whole year, right? The biggest promise, the real promise is it brings balanced life. ना बिल्कुल बैलेंस लाइफ है. बहुत ज़्यादा इधर हो गया, बहुत ज़्यादा इधर हो गया, ऐसा नहीं होगा. एकदम ही ग्लानी है, एकदम ही घृणा हो गई है, एकदम ही एक्साइटेड रह गया, फिर एकदम धमाक से नीचे गिर गया. धमाक में ऐसा बिल्कुल समता में स्थित, राइट? समत्वम योग उच्चते, भगवान कहते हैं समत्व. पतंजलि महाराज ने चित्त वृत्ति निरोध योग को कहा कि जो अपने चित्त की वृत्तियों को रोक सके वो योगी. लेकिन ये बड़ी अलौकिक भाषा है भगवान के शब्दों में. वो तो साधु ऋषि मुनि थे, भगवान ने एकदम फर्स्ट क्लास उसको और कहीं एलिवेट किया. समत्वम योग, जो समता में स्थित हो सके, है ना, जो निंदा और स्तुति में भी सम हो, जो हर्ष शोक, गुरु मिला तब जानिए, तुलसीदास जी कहते, गुरु कहते ना, गुरु मिला तब जानिए, मिटे शोक संताप, हर्ष मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, फिर गुरु अपने आप, है ना. गुरु मिला तब जानिए, सब सचमुच में गुरु कब मिला, जब मिटे मोह संताप. न मोह रहा न संताप रहा, हर्ष शोक एक्साइटमेंट या डिप्रेशन व्यापे नहीं, फिर गुरु अपने आप, है ना. तो ऐसी समता की परिभाषा करने वाली भगवत गीता जो है, really brings balance हमारे, and we really don't hate anyone honestly, right? And we don't overly love anyone. अपने मेरे तेरे की भावना निकल जाते हैं. We're never too anxious, we're never too casual, we're never too depressed, never too excited, no कभी बहुत अभिमानी. और इसमें से फर्स्ट क्लास निकल सकते हैं संसार में, राइट? लेस बैगेज. जितना बैलेंस जीवन में उतना लेस बैगेज, उतना लाइट वेट कैरी सके, उतना भाग सके, उतना निकल छुट सके इसमें से, उतनी जल्दी से प्राप्ति हो सके जो प्राप्त करना चाहिए. इसलिए देयर इज नथिंग लाइक दिस गीता. It's nothing more effective like than the Gita. This is my experience, right? You don't have to listen to it, but यहाँ के बैठे तो सुनना तो पड़ेगा. Now, नए साल में you have a choice whether or not you want to come. So the idea behind the ecosystem is that इसमें सब आ गया again, right? ऐसा कुछ नहीं रहा. सच कहूँ तो गीता में छूट गया. ऐसा कोई ज्ञान नहीं रहा जो बाकी रह गया. ऐसा कोई प्राप्त करने लायक वस्तु नहीं रही. ऐसा कोई अनुभव नहीं रहा जो अनुभव करने योग्य है और इसमें न हो ना. ऐसी कोई बात नहीं कही गई, कहीं लिखी है जो कहने योग्य और यहाँ नहीं कही. भक्ति की हो, ज्ञान की हो, योग की हो, ध्यान की हो, भगवान की हो, साधक की हो, है ना, दैत्य की हो, सूर्य की हो, असुर की हो, ब्रह्मांड की हो, अंदर वाली अंतर की हो, बाहर वाली की हो, है ना, विश्व रूप की हो या अणु मात्रा, अणु अणिया महेर महियान, भगवान के गीता में जो छोटे में छोटा, अणु से भी अणु, सब एटॉमिक पार्टिकल यहाँ पर रेफरेंस है गीता में. 5,200 years ago, 200 years ago, right? सब एटॉमिक पार्टिकल, अणु अणियान महत्व महियान, बड़े कोलासल, द बिगेस्ट गैलेक्सी से भी बड़ा, है ना, जो भगवान अपना आत्मा का जो डिस्क्रिप्शन करते हैं. सो इतने सारे में लुकिंग फॉर द नीडल इन द हेस्टैक, जैसे कहते हैं,
कि कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे. This is it, right? So that's the ecosystem which includes everything, which is all inclusive. किसी को छोड़ेगी नहीं. No child left behind. Everybody has a place in this. It doesn't matter which religion, स्त्री हो पुरुष हो, किस भगवान को मानते हो. बिल्कुल दिन रात छाती ठोके भगवान ने कह दिया कृष्ण ने कि करो, अपनी साधना करो, अपने भगवान को मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं. He has no problem, no issues with किस रूप में तुम उसकी पूजा करते हो, कौन सा नाम लेते हो, कौन सा मंत्र, कौन सा फूल चढ़ाते हो, कैसा उपवास करते हो. No problem. It doesn't matter because in the end it's me. Right? ये सब है ना. आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति. भगवान कहते हैं यहाँ पे कि it bothers me not कि तुमने शिव को प्रणाम किया या माता को प्रणाम किया या और किसी खंडोबा को प्रणाम किया. सारों में मैं हूँ, मेरे को ही प्रणाम. यू कैनॉट एस्केप मी. कहीं भी प्रणाम करिए, गधे को प्रणाम कर या राक्षस को प्रणाम करे, डजंट मैटर, प्रणाम नहीं स्वीकार करता. लेकिन फल ऐसा मिलेगा जिस भावना से तुम करोगे, है ना. और जो मेरे भक्त है वो मत भक्ता यहाँ के मत पराम, वो डायरेक्टली मेरे पास शॉर्टकट में जा रहा है. जो मेरे भक्त है सीधा शॉर्टकट से पहुंच जाते हैं. लेकिन सो द बिग डील अबाउट गीता इज इट्स वेरी इंक्लूसिव. सबको लेकर के चलने वाली है. यहाँ पर कोई एक्सक्लूसिव प्लान नहीं है, हमारा कल्ट नहीं है यहाँ पे कि ऐसा ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसे ही प्राणायाम करने पड़ेगी, यही नाम लेना पड़ेगा. आई मीन आई विल से कृष्णा, राइट, लेकिन दैट्स बिकॉज आई लव कृष्णा. ये तो प्रेम की निशानी है. तो मेरा आग्रह नहीं है. आई विल जस्ट टेल यू दैट यू क्रेजी इफ यू डोंट टेक कृष्णा नेम, बट इट्स योर चॉइस. मेरा कोई आग्रह नहीं है क्योंकि मैं गीता का साधक हूँ, राइट, क्योंकि मैं कृष्ण का भक्त हूँ. कृष्ण के भक्त में हो ही नहीं सकता भेदभाव. अगर सच्चा भक्त है तो फिर कृष्ण का भक्त ही नहीं है. अगर भेदभाव की भावना है तो सीधी बात है. सो जो शुरुआत होती है उसे साधक कहते हैं. साधना है ना. साधक साधना करेगा तो सिद्ध बन जाएगा. That's how the point A to point B, spiritual progress, right? शुरू में साधक है, साधक is seeker, कुछ साधना चाहते हैं. I'm seeking something, I want something. जैसे मैंने कहा बाजार में गए कुछ भी ले सकते, एक वस्तु कोई भी खरीद सकते, राइट. दैट्स संस्कृत में अगर समझे इस बात को, आई एम सीकिंग समथिंग, आई वांट समथिंग इन द मार्केट फॉर समथिंग. व्हाट इज इट? आई डोंट नो, बट आई नो दैट आई वांट समथिंग. समथिंग इज ड्राइविंग मी. आई एम लुकिंग फॉर समथिंग. इस दुकान से उस दुकान से उस दुकान से उस दुकान से भागे भागे तड़प रहे जा रहे थे. Maybe this. I don't know what it is, but I want something. There is something that's constantly pushing me. And I'm desperate for it. ना? वो हो गया साधक. जो सीकर है, जो चाहता है. और जो बाहर निकला बाजार से ये खाली करके गया, गाय है, राइट, जो वस्तु प्राप्त करने बाजार में जो मिल गई. कार वॉज राइट, भगवान मैंने वो निकाल के दिया तो सचमुच में उस दुकानदार ने मेरे को वो वस्तु दे दी जो मैं चाहता था. लुक आई हैव इट, आई एम गोइंग. और जो निकल पड़ा वहां से बाहर उससे कहेंगे मतलब प्राप्त हो गया. और that state of mind, what you are able to do with it is siddhi. जो हम सिद्धि सुनते हैं ना, वो सिद्धि प्राप्त है, सिद्धि कर सकते हैं. What you are able to do with what you just bought, है ना. कोई गैजेट होगा, इससे ये होगा, इससे वो करेगा, चमकेगा, जो भी होगा वो सिद्धियाँ, अलग अलग सिद्धियाँ. So the journey, our journey, my journey, your journey, whether or not you understand it, whether or not you recognize it, whether or not you accept it, again it is a journey from point A to point B, from seeker से सिद्ध तक. So अगर हम साधक है तो how should I identify myself? How should I be? What are the characteristics of a sadhak? How should I know that I am a sadhak? What should I do? What should I not do? So for me, this captures कि साधक वो है जो जिसे तीन लक्षण होते हो. एक धर्मनिष्ठ है ना, हमेशा लॉयल, धर्म के प्रति लॉयल्टी है, निष्ठा है ना, पक्का अडेग है अपने धर्म पर. मतलब हिंदू धर्म पर नहीं, मुस्लिम धर्म पर भी नहीं, जो अपने धर्म पर. स्वधर्म निधनम से भगवान कहते हैं. पर धर्म भयावा, अपने धर्म में जो तुम्हारा धर्म, वेरी वेरी इंडिविजुअल, वेरी स्पेसिफिक, वेरी कस्टम टेलर्ड फॉर यू, राइट. इन जनरल माता का धर्म है, इन जनरल स्त्री का धर्म है, इन जनरल पुत्री का धर्म है, बहू का धर्म है, सास का धर्म है. लेकिन फिर भी उसमें भी जनरल धर्म, स्त्री धर्म में भी तुम्हारा धर्म is very specific because it is so dependent on who you have around you and what circumstances they are in and what they're struggling with. Like your son may be very different from her son.
and therefore your dharma of mother might be very different from her dharma of mother, right? So अब इधर अपनी अकल लगाए ये समझने में, है ना, इधर उधर की बातें चबर चबर समझने में इट्स ओके, कोई जो होगा होगा, इलेक्शन कोई भी जीते, कुछ भी करे, कोई भी सेक्रेटरी बन जाए, दैट्स नॉट गोइंग टू मैटर, उससे अंत में कुछ नहीं होगा, व्हाटएवर, राइट? हाँ, तो ये तो पर धर्म भयावह, देन वो दूसरे का मोदी का धर्म अपना रहे, तो उसमें इनसिक्योरिटी, अंत में ओ माय गॉड इतना समय हो गया, मेरा काम तो बाकी रह गया, है ना, आई डोंट हैव, है ना, तो इसलिए stick with your dharma. That's the first absolute necessary characteristic. Identify what you are doing, stick with it, be loyal to it. निष्ठा बड़ा सुंदर शब्द है, बड़ा पावरफुल शब्द है, निष्ठा हो, like pure commitment, धर्म निष्ठा, जिसे अंग्रेजी में हम कह सकते हैं ever dutiful. Understand what your specific duty is, right? As a wife, as a neighbor, what's your duty? क्योंकि तुम्हारा neighbor इसके neighbor से अलग हो सकता है, so depending on that, so make it your own, personal. Everything about Gita is personal. Krishna is my own. Krishna is not your Krishna, right? Watch out. Krishna is my Krishna. ऐसे ही dharma is my dharma, and Krishna is dharma, and dharma is Krishna. And it has been said that yato dharma tato Krishna, yato Krishna tato jai. Victory. अंत में जीत उसी की होगी जिसके पास कृष्ण होगा, अंत में कृष्ण उसी के पास होगा जिसको अपने धर्म से टिका होगा. धर्मो रक्षति रक्षिता उपनिषदों में आता है, जो अपने धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा, राइट? तो इसमें कभी स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, सेकंड चैप्टर भगवद गीता, कृष्ण कहते हैं अपने धर्म में थोड़ा भी कमिटेड रहा तो भी बड़े बड़े डर से बचाव हो सकता है. यू विल फील द प्रोटेक्शन ऑफ धर्म if you stay committed to your dharma. You will also feel the protection. धर्म की रक्षा का अनुभव होगा अगर हमने अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखी तो. तो ये सूक्ष्म बात है, because the big question, the $1 million question is, so what is my dharma, right? I'm not going to answer that question today, and because I know my dharma perhaps a little bit, I cannot understand your dharma necessarily, and I will not claim to know. In general terms, we can talk. You will have to identify your dharma, and the Gita will help you clearly identify what your dharma is. Your dharma and her dharma and his and hers and hers. सबके ये एक बाण से हजार, एक तीर से हजार निशाने साधने वाला ग्रंथ है, सबको अपना अपना मिल जाएगा, right? So धर्म निष्ठा ever dutiful रहे. दूसरी बात आती है शरणागति. तो शरणागति में बड़ा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है. मोस्टली पीपल थिंक कि नाक रगड़े, भीख मांगे, घुटने टिक जाए, है ना, कहे कि तुम फ्लैटरी करे, चापलूसी के चमचेगिरी करे, भगवान की पेड़े लगाए, दही है कि ना 100 रुपया रखे, ये होगा तब ऐसे, ऐसी वो शरणागति का कोई नाम ही नहीं उसमें, है ना. शरणागति लाइक अलाइनिंग, एक्सेप्टिंग, भगवान को स्वीकार करना, कि अकल से काम लेकर के समझ की या जो जिसने ये सबको रखा है कि पृथ्वी नाम का गोला ऐसे ऐसे तर खड़ा है, लटक रहा है हवा में, है ना, जिस पर मैं खड़ा हूँ, और कितने जोर से घूम रहा है. मैन लाइक यू नो 36,000 miles per hour. That's insane. It's right now it's moving and I don't even feel it. The whole thing is moving that fast. अपने अराउंड भी घूम रहा है और इधर उधर भी घूम रहा है, and the whole thing is going like कुछ तो होगा. There must be some law, there must be some power that knows, some intelligent being who is in control, सर्व समर्थ, right? तो भगवान के जो हाथ होते, एक अनुग्रह करने वाले और एक निग्रह करने वाले, and he can control and he can also rescue, and वो क्षमा भी कर सकते हैं एक और दूसरे हाथ से खबरदार और रोक भी सकते हैं. He has the full power to stop everything. He has the full power to start everything at will. So understanding अपने humility, humble, अकलमंदी से और नम्रता से भगवान की सृष्टि को समझे, भगवान को समझे, उसके सामर्थ्य को समझे, उसके ज्ञान को समझे, उसके ऐश्वर्य को समझे. भगवान की परिभाषा शास्त्र में है ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यश श्री समुदायतम. ये 6 इंस्टेंटली जिसमें दिखाई दे, और ऐसा ही की होता है भगवान, जिसमें संपूर्ण ज्ञान है. He knows everything. Who can claim, who can say that he knows everything? No sant, no guru, nobody knows everything except God. And he says that. भगवान धनती की चोट पे कहते गीता में, I know everything. अर्जुन को कहते हैं ना,
he asked fourth chapter में ये कैसे तूने पहले ये कहा पहले वो कहा how did you tell it to God sun God तो अभी का मेरे से 1.5 साल से बड़ा है तो सूर्य को कैसे बताया ना एक कैसे तो मेरी बुआ का बेटा है तो कहते ना वो तो अभी का है मैं पहले सबको जानता हूँ सबके जन्मों को सबके मतलब बाद में होने वालों को भी जानता हूँ राइट सो वो हो गया भगवान ज्ञानम लेकिन वैराग्यम ऐश्वर्य उसका आपिलम सारे ये कहते ये जो ग्रह तारे ये सूत्र मणिगणा है वो this is my necklace where these planets and stars are they're going around me है ना मेरे श्वासों से स्मृतियाँ श्रुतियाँ बनती है इसकी जो लिमिट ही मैं क्या अपनी किस युवा से था उसके आपिलेंस की बात राइट उसकी जो वेल्थ है उसका जो वैभव है उसकी है ना जैसे कहते anyway I'll stop there लेकिन उतना होते समय उतना ही वैराग्य भी है एकदम निरंकारी योगी योगीश्वरेश्वर कुछ किसी से चिपका नहीं मेरे लय नारायण बिल्कुल लेना देना कुछ नहीं सुपर अनअटैच्ड कहीं अटका नहीं कहीं अपना आग्रह नहीं makes no difference to him. He has everything and yet he's attached to nothing. Right? ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यश इसके पास तो जो चाहे संकल्प मात्र से इसमें कहते गीता में मद भावा मानसा जाता मेरे मन के मेरे संकल्प से ये सृष्टि हुई मैंने विचार किया और हो गया है ना जब मैं अपने आप अंदर ले लेता कि हो गया समय बहुत हो गया सब वापस आ जाता है तो जो संकल्प मात्र से सारी सृष्टियां निर्माण करे उसका यश who can control his success right यश श्री जो मांगल्य श्री जो कहते जो मंगल हो पवित्र हो पवित्रों में पवित्र मंगलों में मंगल सबका भला करने वाला वो भी कहते सर्वदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मापनति भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा साधक मेरा योगी अंत में मुझे सबका स्वरूप जान लेता है समझ में आता है हाउ आई एम द वेल विशर ऑफ ऑल रावण का भी मेरे से बड़ा कोई हित चिंतक नहीं था जब मैं राम रूप में आया था कंस का भी मेरे से बड़ा हित चिंतक कोई नहीं था जब मैं कृष्ण रूप में आया था मेरे से बड़ा हित चिंतक हो ही नहीं सकता है ही नहीं और ऐसा कोई ही नहीं है जिसका मैं हित न चिंतु सबका हित चिंतक एट वंस साइमल्टेनियसली है ना तो वो श्री उसमें आता है और समुदायता मतलब सामर्थ्य है He is the most powerful. You watch. There is no one more powerful than him. Take notice. सामर्थ्यवान हो जो चाहे जो कर सके है ना जैसे मैंने अनुग्रह निग्रह वाली बात की थी ये 6 गुण एट ऑल टाइम्स जिसमें हो वो भगवान कहते हैं जैसे कृष्ण के लिए भगवान कहते हैं सो उसकी जो अपनी थोड़ी अकल हो थोड़ी जितनी आले इतनी हो किसी देर कितनी हो गहराई इतनी अकल हो अपनी जिसकी है उसकी अगर इसी बात समझ के यार I am better off aligning myself with him. You know, I'm sure whoever it is, जिसको भाई calls him Krishna, maybe Krishna से कोई नाम नहीं उसका, ऐसा कोई मोर हो के कुछ नहीं लगा था वो बासी वैसी फालतू बनाया maybe जो whatever it is real but maybe you don't but whoever it is कि जिसने भी ये सब बनाया उसको I will accept him as सर्वे सर्वा the most powerful right and I'm going to align myself with his laws. I'm going to fall in line and I'm going to just follow essentially जो भी धर्म बनाया है जो भी अच्छा करके big rock says this is good this is bad this is right this is wrong whatever those big fools right now as a seeker सिद्ध अवस्था में ऐसा कुछ नहीं होगा right जब सिद्ध हो जाएगा बाहर निकलेगा बाजार से तब पता चलेगा इससे मजाक कुछ अच्छा बुरा nothing was there was nothing तो अच्छा बुरा क्या था लेकिन अभी सारा है ना अभी तो चल पड़ेगा you're entering the market right so then it's best to follow the path the footprints that are ahead of us जो भगवान के मार्ग पर चल चुके हैं so God aligned would be reading the Gita one example would be reading the Gita and living life according to it would be it right or the one very good way of aligning with God is ध्यान करें क्योंकि वो 10 अध्याय में कहता है विभूति योग में भगवान अर्जुन पूछता है फाइनली कि हाउ कैन आई सी यू इन डिफरेंट फॉर्म्स तो वो कहते जल में मैं रस हूँ चंद्रमा में मैं सौम्यता हूँ सूर्य में मैं तेज हूँ पृथ्वी में मैं औषधि गंध हूँ है ना अलग अलग रूपों में इन वेरी सटल फॉर्म्स है ना जल पानी अगर बह ना सके फ्लूइडिटी ना हो तो पानी कैसा हो जाएगा है ना so that fluidity is because चंद्रमा अगर शीतल सौम्य आह्लाददायक
न हो तो फिर ऐसा नहीं आनंददायक होगा। सूर्य में अगर तेज नहीं होगा, तप नहीं पाएगा, तो सूर्य की क्या कीमत रहेगी? तो उससे फिर किसी का काम नहीं बन पाएगा। तो ऐसे ऐसे अलग अलग उदाहरण देख के भगवान बताते हैं विभूति योग में 10वें अध्याय में। When we get to it 7 years later, we'll approach that. लेकिन उसमें बाद में वो कहते कि ये सारा ज्ञान बाय द वे गॉड से सबके अंदर पहले से है ना। जैसे दिया हो साफ सुथरा, उसमें तेल भरा हो, बाती भी लगाई हो, then it has the full potential to light. Someone has to just light it, है ना। तो फिर वो प्रकाश हो जाएगा। वो उसका अपना प्रकाश, उसके अंदर सब सामग्री है। दिए में दिया भी है, बाती भी है, तेल भी है, पोटेंसी भी है। किसी को देर लगाने की देर मात्र है, तो वो प्रकाश उसका स्वयं प्रकाशित जब तक चलेगा तब तक। ऐसे भगवान कहते हैं कि ये सारा ज्ञान का बीज में सब के जब जन्म लेता है तभी से होता है। And that is consciousness, that is awareness, that is that the dollars that are in your pocket with which you can buy anything in the market, one thing, right? ये सब में है। लेकिन जो सीख करते हैं, जो साधक होते हैं, उनको मैं भगवान कहते हैं अंदर, उसके अंदर ही वो दिया जला देता हूँ। क्योंकि बाहर से खोपड़ी में कोई प्रकाश नहीं डालता, उसके अंदर अपने आप ज्ञान उपजता है और वो ध्यान द्वारा आता है। इसलिए गॉड अलाइन होने का दूसरा मार्ग ध्यान करना दिया। क्योंकि बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% you will not go wrong. Meditation will never lead you on the wrong path. It will always bring you on the right path. And that's a natural way of aligning with God. So वो हो गए शरणागति। We talked about धर्मनिष्ठ, we talked about शरणागत, और तीसरी बात है अपेक्षा रहित, expectation free, practical, नकदी रोकड़ माल, right? Practically क्या है? तो काम करना पड़ रहा है, इधर उधर जाना पड़ रहा है, डांटना पड़ रहा है, धमकाना पड़ रहा है, जो थप्पड़ लगाना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। तो फिर ये सब बचेगा कैसे? तो अपेक्षा रहती है, on a practical level, on a day-to-day basis, every day, whatever you do, अपेक्षा ना रहे। And do what you have to do. थप्पड़ भी लगाए, उसको लाड़ प्यार भी करे, बच्चे को जो भी होगा खिलाए पिलाए भी, भूखा भी रखे, जो उसका अपेक्षा ना रखे कि इससे ये होगा, उससे वो होगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होगा तो ठीक होगा, ये नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। ये सब कचरा वहाँ पड़ती है, ये कचरा पड़ती है, बिल्कुल गेट रिड ऑफ इट, दिस इज ट्रैश। उसमें फंस जाएंगे। कोई न साधक ही नहीं है, अपने आप को साधक बिल्कुल नहीं कहना जब तक अपेक्षा है मन में। तो मार्केट में एंटर ही नहीं हुए अभी तो, है ना। उसमें से ढूंढने बाद में जो एक वस्तु जो खरीदनी है वो चलेंगे। So बिल्कुल today, I mean before the end of this year definitely, but I would even say today, you gotta drop. चले जो है वो सारी अपेक्षा दे दे, बिल्कुल भेटे में क्रिसमस यहाँ से अपनी सारी अपेक्षा इनके बेसमेंट में रख दे कि थैंक यू, इतने साल अपने महल में हमें लाने दिया, दिस इज माई गिफ्ट टू यू, आई लीव ऑल माई एक्सपेक्टेशंस हियर। यहाँ रहने वाले नहीं है ऑब्वियसली, ये तो मजाक की बात है। My point is don't leave this house without leaving your expectations behind. So अपेक्षा रहित, and you will find this in Gita 100 places. ये बातें अलग अलग रूप में, धर्म की बात या शरणागति की बात, अपेक्षा रहित होने की बात, sporadically कहीं जितने नमक मिर्च मसाला इधर उधर सब डाल दिया, ऐसे सभी अध्याय में ये सब माल मिलेगा, है ना। तो ये चुने हुए सिंथेसाइज है, आपके लिए बना बनाया माल सामने रखा है। तो धर्मनिष्ठ जीवन हो, शरणागत जीवन हो, अपेक्षा रहित जीवन हो, तो तीन अगर हमें हो, तो उनके जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होता है, दैट ओम इन बिटवीन, इन द फर्स्ट डायग्राम दैट यू सी, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ये तीनों बातें जब हृदय में आएगी तो कुछ न कुछ डिवाइन अनुभव, यू विल स्टार्ट फीलिंग समथिंग, यू नो, समथिंग बिगर एंड बेटर, starting to feel that something is there, something feels right, something feels good, feels like मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, किसी ठीक रास्ते पर हूँ। I don't know what it is, लेकिन I don't know why, लेकिन मन में शांति है, इतनी जलन नहीं हो रही है, इतनी स्पर्धा, इतना कंपैरेटिव नहीं रहा, इतनी चिंता नहीं रह गई अभी, इतना कंफ्यूजन नहीं रहा। ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो होगा, ऐसा लग रहा है। नहीं, इतना मिला तो इतना मिला, उतना मिला तो उतना, whatever, मूव ऑन हो रहा है, अटके नहीं है। ठीक है, बच्चे को जो ग्रेड जो मिले वो मिले, अपनी ओर से पढ़ा रहे, अपनी ओर से कह रहे, लेकिन नहीं मिले तो खाना खराब नहीं हो रहा है ना। ये धीरे धीरे अनुभव, that you start seeing these things are working together in confluence. You know, those three are connected also with the arrows because one will pull the other. They are very powerful.
एक को भी अगर पकड़ के रखे, कहे कि तीन बातें मेरे से नहीं हो सकती, जब ये फाल्गुनी बहन तीसरी बात ग्रोसरी स्टोर से बताते हैं फॉरगेट, 2 ही बातें याद रह सकता है, when she says the third thing I have to write it down, right, because I forget, so 3 बातें नहीं हो पाएगी मेरे से, 2 हो पाएगी, maybe 1, how about 1, तो चलो ठीक, किसी एक को पकड़ो इस 3 में से, तो देखो धीरे धीरे खींच के लाता है कि नहीं, क्योंकि वो हर एक दूसरे 2 से जुड़ा हुआ है, 100% लाएगा दूसरे 2 को, ये फर्स्ट क्लास लिस्ट, इसमें भूलने का प्रश्न ही नहीं है। कोई नोट्स लिखना नहीं, कोई कुछ नहीं करना है, पिक 1, एक तो हो सकता है ना, सबसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, नहीं, अगर नहीं हो सकता तो यहाँ आए क्यों, एक तो हो ही सकता, होना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, धर्मनिष्ठ जीवन हो या तो ईश्वर शरणागत, ये तो शरणागति में तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ दैट्स हाउ इजियर कैन वी गेट, भगवान कुछ बताया रास्ते पर जैसे लगा चलना है, चलो फर्स्ट क्लास बिना तो, है ना, तो देखो खींच के लाता है कि नहीं धर्म को, जो शरणागत होगा वो अधर्म में रह ही नहीं सकता, अगर ईश्वर की शरण हो और अधर्म कैसे आए, क्या मजाल है उसके आश्रय की अधर्म की, तो अंदर तक नजदीक भी फटक पाए, ही knows यहाँ पर भगवान सर्व समर्थ है, यहाँ पर बैठे हृदय में, अधर्म का प्रवेश हो ही नहीं सकता उस हृदय में, जिस हृदय में भगवान के लिए स्थान है, राइट, then you don't even have to worry about what is my dharma, whatever you do will start becoming, you will start understanding it as dharma, और फिर अपेक्षा भी कम होने लगेगी, क्योंकि सारा चित्त सारा अगर भगवान की ओर लगा है तो इतना ज्यादा जलन नहीं होगी कि हो रहा है नहीं हो रहा है, सुन रहा है नहीं सुन रहा है, मन रहा है, क्योंकि हाँ मेरा मतलब ज्यादा भगवान से, दैट्स व्हाट यू वांट। अगर धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ है, नहीं अपना करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होता, भगवान क्या कर रहे, भगवान को किसने देखा, हु नोज गॉड, भगवान है भी नहीं, अपना करना चाहिए ना कुछ बहादुरी से, तो चलो फिर धर्म से करो, धर्म के मार्ग पर रहो, अपने धर्म को समझो, धर्म को लेकर के चलो, तो देखो धर्म के पीछे पीछे बिल्कुल खींचा हुआ आता है कि नहीं कहना, वो तो उधर ही रहता है जिधर धर्म होता है ना, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए सब ज्यादा से ज्यादा समय वो राधा के पास, गोपियों के पास, वृंदावन में, there is no greater dharma than love, it cannot be, in fact it is so higher than all other dharmas put together, right, the dharma of love, that is where you will find Krishna, undoubtedly, 100% at all times, the heart in which love exists, and there is nothing but love, that is the heart of Krishna, that is where Krishna lives, you will experience God, unconditional, unselfish, unmotivated, कोई लेना देना नहीं, तो प्रेम पर प्योर लव, लव ऑफ गॉड, तो धर्म के मार्ग पर चले तो अपने आप खींच के आ जाएगा, और धर्म में ये भी होगा कि धर्मनिष्ठ अपेक्षा रहित अपने आप होगा कि नहीं, अगर मेरा लेन देन अगर मेरे धर्म से है तो अपेक्षा का कहाँ संबंध है, आई एम डूइंग व्हाट आई हैव टू डू, आई एम डूइंग माय जॉब, नॉट अबाउट होगा कि नहीं होगा, कौन क्या करेगा, दूसरा अपना धर्म करेगा कि नहीं, हम फोकसिंग ऑन माय धर्म, तो अपेक्षा अपने आप होना शुरू हो जाएगा ना, छुट्टी होनी, अपेक्षा से छुट्टी होनी चालू हो जाएगी, एंड द सेम थिंग अगर अपेक्षा रहित अगर हो तो उसमें भी शांति है ना, लेट गो करे तो शांति है, उसमें भी भगवान है, जो भी करना है कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अपेक्षा नहीं है तो बिल्कुल अनुभव होने लगे, दैट इज धर्म इन फैक्ट, राइट, भगवान। सो पिक वन, स्टार्ट रनिंग विद इट, टेक योर पिक, इसमें से कौन सा, अंडरस्टैंड दैट अगर और प्रोग्रेस करना है और स्पीड पिकअप करनी है, दिशा और गति, ये 2 बातें आवश्यक होती है प्रोग्रेस करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए दिशा सही चाहिए और गति रीजनेबल चाहिए, है ना, स्पीड, तो दिस चार्ट शोज दिशा, क्या करना है, गति कितनी, स्पीड कितनी, कब तक, कल तक काम करना है या 10 साल बाद करना है या 7 जन्म बाद करना है या अभी करना है, दैट डिपेंड्स ऑन कितने फास्ट जाने की तैयारी है, राइट, तो जो फास्ट जाना चाहता है या जाने की क्षमता है, जितनी तड़प है, बिल्कुल आई डोंट वांट टू वेट एनी लॉन्गर, है ना, वो तीनों को लेकर आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद माय धर्म, टोटली अलाइन्ड विद गॉड, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हियर ऑन अबाउट एनीथिंग एंड फ्रॉम एनीवन, नो मैटर व्हाट, डजंट मैटर, कड़वा होकर नहीं, बेटर होकर के नहीं, गाली गलौज करके नहीं, कैसे गधा है कुछ नहीं चाहिए, जैसे भाग जाए देना देना नहीं, प्रसन्नता से, प्रसन्न हृदय से, छलक छलक के, नाच कूद के, कोई अपेक्षा कहाँ भूत कहाँ से आ गया, व्हाट इज, राइट, गेटिंग रिड ऑफ दैट अपेक्षा का भूत जो सवार हो गया, दैट इज ए साधा, दैट पर्सन हैज एंटर्ड द मार्केट, उस मार्केट में है वो जगह, वो चीज जो ढूंढ रहे, जन्मों से ढूंढ रहे भैया, ये अभी आजकल की सच नहीं है,
That is the only reason why you are here, Chintamani Bhai. Right? That is the only reason should appear. That is the only reason why you're here, because you want that one thing, and it is there in that store. So उसको लेकर भाग जाए, योगी बन के निकल जाए, अपना काम बना ले.